We are having three states of matter, है ना? We know that is going to be solid, liquid and gas. And we know what is the meaning of solid: fixed volume, fixed mass, right? Fixed mass and like not fixed volume, right? Shape and size के हिसाब से. So over here, हाँ, shape और size के हिसाब से समझ सकते हैं. So fixed shape, fixed volume but not fixed shape, है ना? Neither fixed shape, neither fixed volume, right? So volume can change like that. And you understand that the spacing is going to be more in gaseous than liquid and then solid. Solid में spacing क्या होगी? कम होने वाली है. ठीक है? So we know about it. What is the, let's say, these state of matter depends on two important factors. These three states of matter depends on two important factor, जो मैंने आपको पहले बताया था. First is no, not temperature, pressure. अभी force of attraction and internal energy, है ना? So we are going to say, so intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction. Second is internal energy. ठीक है? Now here force of attraction is going to be, let's say, in solid state, intermolecular force of attraction is going to be more and internal energy is going to be less. So we know that how these are going to exchange to each other. So solid, you know, is converting into liquid, that is called solid से liquid हो रहा है, then it is called melting or fusion. Melting or you can say fusion. अगर liquid से solid जाएगा then it is going to called as crystallization, है ना? उल्टा वाला पीछे. ठीक है? अगर liquid से gas जा रहा है then what is this called? Vaporization or boiling, है ना? So that is vaporization. And this is, can say, boiling. And that is going to be, है ना, crystallization की तरह इसी को बोलते हैं condensation. Condense हो गए, है ना? Condensation, gas to liquid. Now all these factors are going to be dependent on, so these states depends on the temperature. So if we are increasing temperature, solid will convert into liquid and liquid will convert into gas. ठीक है? If we are increasing temperature, solid is going to be converting to liquid and liquid is going to convert into gas. ठीक है? Now what is happening in this process? Internal energy is increasing. So as temperature increases, internal energy increases and started to dominate over force of attraction, over intermolecular force of attraction. So you can see इन दो फैक्टर के आपस में जो
जो भी इक्वेशन बनेगी इन दो फैक्टर की, उसके कारण 3 स्टेट ऑफ मैटर आ रहे हैं, ठीक है। जो भी इनकी लेट्स से कंडीशन बनेगी उसके हिसाब से आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी, सॉरी स्टेट ऑफ मैटर बनेंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, लेट्स से इट इज स्टार्टेड टू डोमिनेट, राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लग गया तो देन सॉलिड, इंटरनल एनर्जी स्टार्टेड टू डोमिनेट, देन इट इज गोइंग टू बी गैस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, hence from solid to liquid and liquid to gas, as distance increases, intermolecular force of attraction decreases. ठीक है, तो जैसे जैसे फोर्स लेट्स से डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, है ना, या इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी, उसके कारण द स्टेट्स ऑफ मैटर आर गोइंग टू बी लाइक दिस। अब इनमें ये तो मतलब दो फैक्टर हैं, कुछ बातें यहाँ पे जैसे फ्यूजन, क्रिस्टलाइजेशन, लाइक दैट, ठीक है, ये आपको पता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन इनमें जो सीखने वाले हैं वो क्या क्या है, जैसे सॉलिड और लिक्विड के बारे में हम पढ़ेंगे 12th में, है ना, दीज टू, देर आर टू चैप्टर, है ना, सॉलिड एंड लिक्विड, that we are going to study in 12th. In today we are going to, let's say, in this year we are going to study about gaseous state. तो जिनको लिखना है जल्दी से लिख लो फास्ट। Yes, I know Hazel is waiting, but उसका फोटो नहीं लगा, मैं एंट्री नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, इन्फॉर्म आयुष, विदाउट फोटो नो एंट्री। डन हो गया, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, डू नॉट थिंक कि किसका, आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है अभी कि किसका चैप्टर, कौन सा ज्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा कम है, राइट, यू डोंट हैव टू थिंक राइट नाउ। डन, चलो now, so next we are going to talk about gaseous state. So to define a gaseous state, कोई गैस है उसको डिफाइन, जैसे मान लो अगर
कोई पर्सन है उसको डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होगी, है ना। अगर कोई पर्सन है इंडिविजुअल तो डेट ऑफ बर्थ है ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए। वी विल बी सेइंग कि नाम क्या है, राइट, एंड लेट्स से सरनेम क्या है, एड्रेस क्या है, काइंड ऑफ। आ गए तुम, हैं, तुमको एंट्री मिल गई। चलो अभी बता देते तुम्हें। एक मिनट। हेजल आपने फोटो नहीं लगाया फिर भी, है ना। भाभी भाषण आपको भगा देंगे हम। ठीक है। सो गैस स्टेट में अगर जैसे मैं बोल रहा था, इफ वी हैव टू डिफाइन अ गैस, सो देयर आर सम प्रॉपर्टी वी नीड टू डिफाइन। जैसे अगर हम बोलें कि किसी पर्सन को डिफाइन करना है, देन वी आर गोइंग टू से दैट वी हैव टू डिफाइन, लेट्स से व्हाट इज द नेम, एड्रेस, लेट्स से सम इंफॉर्मेशन अबाउट कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, काइंड ऑफ, राइट। सो सिमिलरली लाइक दिस, तो गैस स्टेट के लिए देयर आर फोर फैक्टर्स, है ना, फोर पैरामीटर्स या फोर प्रॉपर्टीज are required to define gaseous state. So that is, first one is number of moles. And number of moles that is represented by N is going to define mass, and how much mass is present. Second, what is the volume, that is represented by V, right? Third, that is pressure, that is represented by P. And fourth, temperature. Though I have already told you the units of these, let's say volume और interconversion, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो यूनिट्स, पहला है मान लो वॉल्यूम के लिए। सो वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml। ये याद रखना है, ठीक है, यूनिट्स। आयुष एजल को बोलो कि वो अपना फोटो नहीं लगा रहा है, मैं उसको बार बार वो आ रहे हैं और फोटो नहीं लगा रहे हैं। कोई और है ना, ठीक है, ओके। ठीक है, चलो
So these are, let's say, 4 property. Second B, let's say we are talking about volume. So this is pressure. Pressure की unit क्या क्या है? Let's say we are going to say first is let's say 1 atm. That is going to be 1 atm is nothing but 1.013 into 10 to the power 5 Newton meter square, because pressure is nothing but force by area, है ना? Area. So that is nothing but Newton meter square, right? So 1 atm is equals to this, or you can say 1 bar. 1 bar is equals to 10 to the power 5 Newton meter square. So hence you can say, hence 1 atm equals to 1.013 bar. Okay. And 1 atm is also equals to 760 mm of Hg, or you can say 76 centimeter of Hg. That is the height of mercury column जो हम we are, let's say, measuring pressure. तो height of mercury column जो भी होगा वो that is going to be 1 atm. 1 atm is 760 mm of Hg, or you can say 76 centimeter of Hg. Here 1 bar is nothing but 750 mm of Hg, or you can say, or 75 mm of Hg, centimeter of Hg. कहाँ है भव्य वासन? लगाया फोटो भव्य ने? आप पहले एक फोटो क्यों नहीं लगा रहे हो भव्य? स्क्रीन शेयर बंद किया है क्योंकि दिखता नहीं है वो मुझे। बार बार बोलने की जरूरत है आपको ये कि फोटो लगा के आना है? देन यू विल से कि सर मेरे को क्लास में नहीं लिया। कुछ पूछ रहा हूँ बेटा भव्य आपसे। सेम थिंग विद एजेल ऑल्सो। पहले आप लोग अपना फोटो लगा के क्यों नहीं आते हो, फिर बोलोगे कि कोई और आ रहा था। निशान चेंज कर लो तो अच्छा रहेगा, बट एनीवे ठीक है। बस बैठ के बस यही करने वाला हूँ क्या मैं, कि बस देखूं आप लोगों को बैठ के कि आप लोग फोटो लगा के आ रहे हो नहीं। क्यों कर रहा हूँ मैं ये? सो दैट्स वाई बार बार डिस्टर्बेंस ना हो। और मुझे ये भी बात पता है कि किसी ना किसी को तो क्लास में पता होगा ये कौन कर रहा है ना? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। देयर इज नॉट एस लाइक सिंगल थिंग व्हिच इज कॉल्ड परफेक्ट क्राइम। किसी ना किसी को पता है, और हो सकता है वो बच्चा ऐसा हो जो क्लास में भी बैठा भी हो, वो दूसरी आईडी से
ये सब काम कर रहा हूँ, बट लेकिन जिस दिन मुझे पता चल गया ना उस दिन खैर नहीं है। ऐसा तो है नहीं, 2 साल है, 2 साल में किस कभी ना कभी किस कोई ना कोई बच्चा बता ही देगा मुझे कि सर ये वो बच्चा था जो परेशान करता था। ठीक है, तो हम देख लेंगे, तो हम देख लेंगे भाई कौन हो तुम। आज ठीक है, आज नहीं है, आज वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, कोई बात नहीं। राइट, मेरे को ये बात पता है, मुझे पता चल जाएगा जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक 6 7 8 10 महीने में कोई ना कोई, जब मैं आपसे इन पर्सन बात करूंगा, राइट, दैट टाइम आई नो कोई ना कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सर ये था मेरा दोस्त, ये कर रहा था ये, राइट, एंड दैट डे इज गोइंग टू बी द वर्स्ट डे फॉर यू, जो ये कर रहे हैं। तो मुझे पता है कोई ना कोई तो है जो कर रहा है, और ऐसा होता ही नहीं है कि कोई बच्चा कोई शैतानी करे, कुछ कहे तो वो अपने दोस्तों को ना बताए या इंटरेक्शन ना हो। तो आई हैव कंप्लीट फेथ कि किसी ना किसी को पता है, धीरे धीरे वो आगे पता चल जाएगा, आज स्प्रेड नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि सीक्रेट रहता नहीं है। किसी ने आज किसी को बोला, उसको बोलता बताना मत, वो दूसरे को जरूर बताएगा। दैट्स हाउ द लाइक एवरी पीपल इन्फॉर्म कि यार आप उसको मत बताना, ठीक है, मैं किसी और को मत बताना, लेकिन आपको भी पता है ये बात, एक दूसरे को बताते हैं लोग। जब पता चलेगा फिर आपका अच्छा हाल नहीं होगा, है ना, जो भी है, राइट। ओके, सो 1 ATM ये हमें पता है, 1 bar, we know that. Then we can also, let's say, write some other units. Let's say this is called 1 ATM is also called, yeah, 1 torr is called 1 mm of Hg. ठीक है, so these are and 1 Newton meter square is called 1 Pascal. There is one more thing is 1 Newton meter square is called, that is 1 Pascal. So these are different units. इसके अलावा 1 torr is 1 mm of Hg. So here you can write 1 ATM equals to, for this only, 1 ATM equals to 760 torr. ठीक है, so these are, let's say, units of pressure. इसमें एक और आती है, that is PSI, पाउंड इंच स्क्वायर। ठीक है, दैट इज नॉट, मतलब इसकी जरूरत नहीं है, बट क्या होता है वो बता दे रहे हैं। ठीक है, देयर इज वन मोर थिंग इज कॉल्ड, जो आपके, अगर आप देखोगे पाइप होते हैं ना, पाइप में जो रेडियाई डायमीटर होता है ना वो इंच में होता है। अगर किसी ने घर में देखा होगा पाइप, तो वहां पे लिखते हैं ½ इंच का या फिर 1 इंच का डायमीटर या फिर रेडियस, इसके हिसाब से होता है पाइप। तो जहाँ पे ये फ्लो की बात होती है, गैस का फ्लो हो रहा है या फिर लिक्विड का फ्लो हो रहा है, वहां पे प्रेशर का टर्म, right, that is given by PSI. So just for knowledge I am telling you PSI, pound inch square inch, मतलब। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा मास, that is force, we have written mg, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रेशर, this is nothing but mg by a। m यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 pound g, and the area is going to be in inch square rather than meter square. So that's how we will calculate। वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, 5800 समथिंग आता है वैल्यू। टायर्स में भी, हाँ टायर्स में भी PSI होता है, राइट। ठीक है, सो दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, हमको पता है 1 पाउंड इक्वल्स टू हाउ मेनी, लेट्स से, तो हमें पता है कि 1 kg इक्वल्स टू 2.2 पाउंड, ये होता है अप्रोक्सीमेटली। सो 1 पाउंड इज 1/2.2 kg, इसको रिप्लेस कर देंगे, g की वैल्यू 9.8 डाल देंगे, मीटर स्क्वायर इंच, है ना, इंच को कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। So inch is going to be, 1 inch is nothing but 2.54 centimeter. So inch square, है ना, 1 inch square equals to 2.54 whole square centimeter square.
then centimeter you will convert into meter, so न्यूटन मीटर स्क्वायर के टर्म्स में वैल्यू आ जाएगी, then you can convert, है ना। तो 5800 समथिंग आता है, मेरे को अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है ना, बट वी कैन कैलकुलेट, ठीक है, आप करके भी देख सकते हो, मैंने बता दिया आपको यूनिट कन्वर्जन कैसे करना। एफपीएस में मतलब फुट वाले में ना, तो हमने कन्वर्ट कर लिया ना, हमने सब जी में ले लिया, मतलब केजी में ले लिया, हमें उसकी जी की वैल्यू नहीं पता उधर, सो वी हैव टेकन एवरीथिंग इन केजी, तो फिर केजी वाली यूनिट लेंगे ना, जैसे 1 पाउंड इज नथिंग बट 1.1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2.2 केजी, तो यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर ये इंच स्क्वायर कितना हो गया, ये 2.54 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये यूनिट हो गई। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट है, लेट्स से टेम्परेचर, टेम्परेचर की तीन है, लेट्स से केल्विन स्केल, so we know that temperature in Kelvin is nothing but 273 plus temperature in degree Celsius, ठीक है। सेकंड है आपकी लेट्स से सेल्सियस scale, and Celsius is nothing but degree Celsius, so okay. And third is it should be 27.13, हाँ करेक्ट, इसको और थोड़ा एक्यूरेट लिखेंगे तो 1.5 ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। सो just one second, okay. So let's say next is Fahrenheit. So this Celsius degree Celsius scale is based on, it is based on water. That is boiling point of water is 100 degrees Celsius, and let's say melting point of water is that is 0 degree Celsius. तो क्या किया कि देख लिया कि राइट कितना मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट में कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और उसके हिसाब से 100 मार्क्स में से मतलब you have distributed. So this is going to be, then we are having Fahrenheit. Fahrenheit scale degree F, so that is going to be again the same thing. यहाँ पे जो melting point है water का, this is also let's say based on water. So we know that melting point is nothing but 32 degree Fahrenheit, and boiling point is nothing but 212 degree Fahrenheit. So 100 spaces has been converted into 180, let's say, spaces. So 100 degree Celsius equals to 180. That's how you would have seen कि कैसे हम calculate करते हैं, right? So that is nothing but conversion क्या है, F minus 32 divided by 180 equals to C by 100, or you can say C Fahrenheit minus 32 divided by 9 equals to degree Celsius by degree, okay, not 0, degree Celsius by 5. We'll solve like this. ये हो गया एक interconversion. So these are, let's say, these are interconversion of units. We just have to remember. Now we are going to talk about measurement of pressure, basically. Measurement of pressure.
और ऊपर yes, Fahrenheit is also like basically you can say we can interconvert these based on water. ठीक है, कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो वाटर के एक रेफरेंस में ले लिया कि भाई देखो यहाँ पे जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसका मतलब है 32 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 1 डिग्री होगा तो यहाँ पे 100 जो लेट्स से वी आर गोइंग टू से यूनिट का जो डिफरेंस है दैट इज द डिफरेंस इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे 1 डिग्री का डिफरेंस आएगा तो यहाँ 1.8 का डिफरेंस आएगा। सो 1 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 33.8 से 2 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट लेट्स से 35.6 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। Now let's say now next is we are going to talk about measurement of pressure and that is barometer. So it is barometer और मैनोमीटर दो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बेस पे करते हैं, राइट? So we'll talk about one by one barometer and manometer. So first is barometer. Now इन बैरोमीटर अगर हम ध्यान से देखें तो उसका सिंपल सा प्रिंसिपल ऐसा है, मतलब मैं बहुत सिंपल बना रहा हूँ। बिफोर वी विल टॉक अबाउट लेट्स से बैरोमीटर, एक और बात बता देता हूँ कि लेट्स से अगर कोई पाइप है और लेट्स से दिस इज द पाइप, ओके, ऐसा कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा पाइप, तो उसमें जो प्रेशर है ना, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, चाहे यहाँ प्रेशर ले लो चाहे यहाँ प्रेशर ले लो, लिक्विड में प्रेशर सेम रहता है, ठीक है? और विद द हाइट विद द लेट्स से डिस्टेंस प्रेशर जो है ना वो चेंज होता रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप मान लो एक बॉटल लो तो भर लो पूरा, है ना, एक मान लो बॉटल है तो पूरा आपने भर लिया और उसको आपने यहाँ पे लेट्स से ऊपर की तरफ आपने थोड़ा सा ऐसे होल्ड कर दिया, तो यहाँ से वाटर निकलेगा थोड़ा सा, ये जो वाटर निकलेगा इस पॉइंट पे जो प्रेशर है उसके हिसाब से निकलेगा, और अगर आप थोड़ा नीचे की तरफ करोगे तो और तेज निकलेगा, राइट? सो दैट इज गोइंग टू हैपन बाय, है ना, अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा। तो विद द हाइट, है ना, प्रेशर चेंजेस, है ना। तो लिक्विड में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे लिक्विड और गैस की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, समझते हैं इस बात को। जैसे मान लो दो कंटेनर है, एक कंटेनर में गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल तो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली लेट्स से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चाहे आप प्रेशर यहाँ ले लो चाहे प्रेशर यहाँ ले लो चाहे इस पॉइंट पे ले लो कहीं भी ले लो, है ना, इन ऑल डायरेक्शन इट इज गोइंग टू हैव फेस इक्वल प्रेशर। तो सारी वॉल्स पे प्रेशर जो है ना वो बराबर लग रहा होगा गैस के कारण, ठीक है, गैस में। बट जब हम बात करते हैं लिक्विड की, राइट, कोई भी लिक्विड अगर हमने फिल किया है तो यहाँ पे सारी वॉल्स पे प्रेशर बराबर नहीं है, उनकी पोजीशन के हिसाब से, राइट? So that is going to be different according to let's say position. What is the position of liquid? कितना आपने उसमें liquid भर रखा है उसके हिसाब से। इस बात को relate कर पा रहे हो? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो गैस सेकेंड बॉक्स में है गैस, है ना, यहाँ लिक्विड। लिक्विड में प्रेशर इज गोइंग टू डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन और हाइट। गैस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, गैस में सब जगह बराबर होगा, है ना। ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन यू मस्ट रिमेंबर। लिक्विड में पोजीशन का फर्क पड़ता है, और अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है मान लो दो पॉइंट, तो उनका प्रेशर बराबर रहेगा, उन पे लगने वाला प्रेशर बराबर होगा, ठीक है। तो ये बस एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए कि जब हम फ्लूइड की बात करते हैं, एक टर्म होता है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एज वेल एज गैस।
फ्लूइड मतलब ऐसा समथिंग जो फ्लो हो सके. सो लिक्विड एज वेल एज गैस दोनों आते हैं इसमें. तो लिक्विड और गैस की ये प्रॉपर्टी अलग अलग है ना. प्रेशर कैसे होगा, कहाँ पे होगा, ये सब बात थोड़ा थोड़ा अलग अलग है. लेट्स सी. तो वी आर टॉकिंग अबाउट बैरोमीटर. तो अर्थ का जो लेट्स से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको माना गया वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो 1 एटीएम. अब अर्थ में भी सब जगह 1 एटीएम प्रेशर नहीं है, ये मैं कल बात बता चुका हूँ, है ना. डिफरेंट लोकेशन, लेट्स से माउंटेन है कहीं पे समुंदर है ना अंदर, लेट्स से, राइट. सो द प्रेशर कहीं पे थोड़े और हाइट है, राइट. अलग अलग हाइट पे प्रेशर अलग अलग होगा. सो देर इज ऑल्सो स्टैंडर्ड कि सी लेवल हम डिफाइन करते हैं कि भाई 0, है ना. तो वी आर गोइंग टू से कि भाई सी लेवल 0 मीटर पे जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर प्रेशर, दैट इज गोइंग टू बी, हम वी आर गोइंग टू काउंट कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर वहां पे हम कर रहे हैं. जो भी प्रेशर आ रहा है उसको हमने 1 एटीएम बोल दिया. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है. अलग अलग हाइट पे अलग अलग प्रेशर आएगा, राइट. सो वी आर टेकिंग स्टैंडर्ड. ओके, नहीं पहले ये देख लेते हैं बैरोमीटर. ओके, तो अब क्लास एंड करेंगे तब पूछ लेना कि कहाँ पे रह गया था. तो बैरोमीटर में व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमने फिक्स कर लिया सी लेवल 0 पे. देन वी हैव टेकन अ कंटेनर, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है ये, और इसमें हमने मरकरी भर लिया. अब जो प्रेशर यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी पी एटीएम, राइट. वही प्रेशर इस पॉइंट पे होगा, वही प्रेशर इस पॉइंट पे होगा, सब पे बराबर बराबर प्रेशर हो रहा होगा. ठीक है, ठीक है. अब हमने क्या किया, एक लेट्स से ट्यूब ली जो मरकरी से भरी हुई है ब्रिम तक, राइट. ठीक है, जिसमें एयर नहीं है बिल्कुल भी, है ना, पूरा यहाँ तक भरी हुई है. और इसको यहाँ पे उल्टा किया. सो वी हैव सो दैट द एयर बबल कैन नॉट कम, यहाँ पे एयर नहीं आ पाए, राइट. इसको पूरा ऊपर तक ऐसे बिल्कुल एंड तक भर के फिर ऐसे उल्टा कर रहे हैं. व्हाट विल हैपन, वैसा करेंगे एक तरह से. ऐसा है जैसे अभी आपने, है ना, मतलब पानी लो गिलास का और इसे बाल्टी में ऐसे पलटो, तो हालांकि फिर भी एयर बबल आ जाता है, राइट, उसमें. लेकिन यहाँ पे वी आर ट्राइंग दैट बिकॉज अगर राइट एयर बबल होगा तो वो फॉल्टी बैरोमीटर आ जाएगा. तो हम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फॉल्टी बैरोमीटर प्रिंसिपल आल्सो. तो कुल मिला के ऐसे करके हमने इस ट्यूब को यहाँ पे, है ना, दैट ट्यूब वी हैव, इसको ऐसा उल्टा कर दिया ना. जब ये इसमें उल्टा कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरी एक्शन आएगा. कैपिलरी एक्शन क्यों आएगा वो समझेंगे थोड़ी देर में. तो जब भी कभी लिक्विड में ऐसे मान लो कोई आप चीज डालोगे तो उसमें ऊपर की तरफ प्रेशर जाता है ना, बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन. जो प्लांट्स वगैरह है वो पानी ऊपर तक जा पाता है उनमें, राइट. दैट इज द कैपिलरी एक्शन. ठीक है, तो ये छोटे छोटे इसमें क्या होगा यहाँ पे ये, राइट, ये मरकरी भर जाएगा यहाँ पे एक पर्टिकुलर हाइट तक, लेट्स से, है ना. इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये हाइट है, इसके ऊपर वैक्यूम है, राइट. सो आई विल ड्रॉ लिटिल बिट लेस. तो यहाँ तक, यहाँ पे क्या है, ये परफेक्टली है. देन दिस इज गोइंग टू बी वैक्यूम. एंड इन दिस दैट पॉइंट यहाँ पे जो लगने वाला प्रेशर है दैट इज गोइंग टू बी 0. वैक्यूम है तो P over here external, that is going to be 0. So at this point P external is going to be 0. हाँ, if we are going to let's say, पानी को अगर आप रखोगे, है ना, सो अगर पानी को अगर आप रखोगे लेट्स से, तो उसमें एयर बबल आ जाता है, इसके कारण प्रेशर लगने लग जाता है. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी, सो दिस इज वैक्यूम एंड ओवर हियर P एक्सटर्नल इज 0. ये बात याद रखनी है. अगर गैस होगी तो गैस के कारण प्रेशर लगने लगेगा इस पॉइंट पे. तो यहाँ पे प्रेशर 0 है. यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी प्रेशर. सो ये हाइट है लेट्स से, अगर हम बोलेंगे h. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू से इन एट दैट पॉइंट जो प्रेशर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा दैट इज mg, राइट, एट दिस पॉइंट.
तो ये पॉइंट ए है, लेट्स से कलर चेंज कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। सो पहली बात तो ये है कि प्रेशर एट पी ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, दैट इज नथिंग बट पी ए टी। नाउ व्हाट इज दिस प्रेशर, यहाँ पे ये जो प्रेशर है ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू pressure at B is nothing but mg by A. A is, let's say, surface, let's say cross sectional area of this tube, है ना, mg is mass of mercury in tube and A is cross section area of tube. Okay. Now what is going to be m? M को क्या लिख सकते हैं, mass is nothing but, if we are going to write, then volume into density. So since mass is nothing but volume into density, so PB is nothing but D, D को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, रो। तो दिस इज गोइंग टू बी, रो इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आप चाहो तो डी भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। सो बी रो जी डिवाइड बाई ए। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग बट height into area of cross section, which is A into H rho G divided by A. So ये कट गया, so PV is nothing but, which is PATM, nothing but rho GH. So that's how we are measuring pressure in terms of height, है ना, हमने लिखा 76 सेंटीमीटर, that is height unit, ठीक है, that is going to be height unit, ठीक है। तो pressure we can measure in terms of height with this help, this type of let's say calculation। ये बात समझ में आ रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत? ये पहले पढ़ा होगा शायद, आई थिंक बैरोमीटर पढ़ाते हैं क्या, है पहले? एक मिनट, नहीं पढ़ा, 9th में ना, बेसिक्स, राइट। ठीक है, दिस इज Hg मतलब मरकरी ओवर हियर, दिस इज नथिंग बट मरकरी। यहाँ पे कोई और लिक्विड भी ले सकते हैं, बट क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा कि ये हाइट चेंज हो जाएगी। तो अगर इसकी जगह कोई और लिक्विड लेंगे मरकरी की जगह, तो हाइट डिफरेंट होती जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा और समझते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर, है ना, फॉर मरकरी लेट्स से, rho is nothing but 13.6 into 10 to power 3 ग्राम पर, let's say, सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी, सॉरी, that is 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यू कैन से 13.6 into 10 to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है। मरकरी, और यहाँ से ये बात भी समझ सकते हो, मरकरी इज 13.6 टाइम्स डेंसर देन वाटर, है ना, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। that you can understand from here कि ये 13.6 टाइम्स हेवियर देन, डेंसर देन वाटर है, ठीक है। तो और ये किलोग्राम में, अब मैंने डेंसिटी बताया था 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। एनीवे,
जी की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द जी वैल्यू? जी वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and h, what is the height comes? Height comes 76 centimeter, or you can say 0.76 meter. So we will convert everything in a standard unit. ये values ले लेंगे हम. So that is, hence PATM is nothing but 13.6 into 10 to the power 3 into G is 9.8 into 0.76. तो अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे तो 13.6 का जैसे 3/4 ये 3/4 है, राइट, एंड दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई, तो ये आता है 101.3 into 10 to the power 3. ठीक है, so this is going to convert into Newton meter square, so you can say 1.013 into 10 to the power 5 Newton meter square. So this is the calculation कि 1 ATM की वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू हमने कैसे की, है ना. अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम कोई और लिक्विड लेंगे तो डेंसिटी चेंज होगी, है ना, राइट. एटमॉस्फेयर प्रेशर तो चेंज हो नहीं रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर की तो वैल्यू सेम ही है. तो अगर हम कोई और लिक्विड लेंगे तो उसकी डेंसिटी चेंज होगी तो हाइट चेंज होगी, राइट. सो अगर हम मान लो वाटर ले लेते हैं, और वाटर क्या हो जाता है ना, रो वुड हैव बिकम 1, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, B is nothing but 9.8 meter per second square. H we don't know, we have to calculate. ठीक है, let's say इसको कैपिटल H लिख लेते हैं. यहाँ पे क्या होता, PATM is nothing but, right, 1 gram is nothing but 1000 kilogram per meter cube, and H we don't know. So 1 ATM is nothing but 1.013 into 10 to the power 5 equals to, ठीक है, 1000 into 9.8 into H. इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, right. This is going to be 101.3 divided by 9.8. ये 1 point, इसको देखना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू, कैलकुलेट. So this is 101.3 divided by 9.8. So that will come 10.33 मीटर. तो अगर वाटर से नापेंगे तो कितना उस कैपिलरी टावर की हाइट जो होगी वो क्या होगी, 10.33 मीटर होगी. तो ये भी याद रखना है, ठीक है. Hence 1 ATM is equals to 10.33 meter of water, which is also equals to 76 centimeter of mercury. कोई मुझे बताएगा तो वाटर के टावर क्यों नहीं बना रहे हैं, है ना, मरकरी से क्यों मेजर कर रहे हैं. कन्वीनियंट है, करेक्ट. व्हाट इज गोइंग टू हैपन यार, इतना बड़ा हो जाएगा ये टावर, है ना, मेजर करना थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी. 10.33 तो काफी हो गया ना, राइट. सो दैट्स व्हाई मेजर करना आसान है, 76 सेंटीमीटर है ये, आप आराम से देख सकते हो, ये इसमें दिक्कत होगी. सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग इट. बट ये कहाँ यूज होगा, जैसे मान लो कोई कहे कि ये एक लेक है या समुंदर है, और इसके यहाँ पे ये बिल्कुल सरफेस पे PATM लग रहा है, तो हर 10 मीटर के बाद प्रेशर क्या हो जाएगा, एक ATM बढ़ता जाएगा. सो PATM इज 1 ATM है, तो आफ्टर 10.33 मीटर क्या हो जाएगा, 2 ATM हो जाएगा. आफ्टर फिर 10.3 मीटर क्या हो जाएगा, 3 ATM हो जाएगा. आफ्टर फिर ऐसे ही, है ना, प्रेशर बढ़ता जाएगा. दैट्स वाई जो डाइवर्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाते, राइट, क्योंकि उनपे बहुत ज्यादा प्रेशर लगने लग जाता है. उसके लिए फिर स्पेसिफिक सूट उन्हें पहनना पड़ता है, सो दैट वो प्रेशर मिनिमाइज हो सके, राइट. ठीक है, राइट. यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते जा रहे हो समुद्र में, है ना, प्रेशर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर या मास क्या होगा, mg, है ना. यहाँ ऊपर PATM ऑलरेडी है, तो इसके कारण ये जो होगा mg/a प्लस 1 ATM ये आएगा ना प्रेशर, एंड दैट इज 10.33 के हिसाब से 1 ATM है, तो 1 + 1
2 atm. Are you able to understand this point? कैसे ना सी वगैरह में प्रेशर चेंज हो रहा है विद हाइट. किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. ठीक है, यहाँ पे बात यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस you can write hence PATM is nothing but rho, let's say 1 G H1 for water is also equals to rho 2 G H2. This is for mercury. G तो G सेम है, तो कंडीशन क्या आ गई? अगर हमें करना है कभी भी, then this is going to be rho 1 H1 equals to rho 2 H2. इसको अगर एक ही हाइट पता है, राइट, डेंसिटी दोनों की पता है, देन यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट हाइट फ्रॉम दिस फॉर्मूला. ठीक है, अब तो अगर मैं हाइट चेंज कर दूंगा, लेट्स से सॉरी डेंसिटी चेंज कर दूंगा, तो फिर हाइट मुझे पता चल जाएगी. ठीक है, जुनेद, आई हैव स्टार्टेड 235 एंड आई हैव गिवन द मैसेज, उसमें लिखा भी है कि 235 से स्टार्ट करेंगे. आई थिंक अभी आपने ज्वाइन किया है. मुझे आप लोगों ने से कही कि मैसेज आई कि सर जल्दी स्टार्ट कर दो, सो आई हैव स्टार्टेड अर्ली. ओके 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 अंश, ये पी नहीं है, ये रो है, रो रो रो, ऐसे बनता है रो. ठीक है, अब इसमें बात आती है फॉल्टी बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट. फॉल्टी बैरोमीटर में होगा क्या कि अगर यहाँ एयर बबल रह जाए, अगर यहाँ एयर बबल रह जाए, लेट्स से दिस इज ट्यूब, योर ट्यूब, और वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से दीज 2 पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पे लग रहा है PATM, और यहाँ एयर बबल रह जाए लेट्स से, तो यहाँ पे लगने वाला जो प्रेशर है P एक्सटर्नल या P गैस है ना, इसके लिए that is going to be P external is nothing but P air and that is not zero. तो यहाँ पे जो आपने रीडिंग नोट की, मान लो आपने रीडिंग नोट की 76 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट पे लग रहा है आपका प्रेशर P air, इस पॉइंट पे लग रहा है प्रेशर प्लस 76 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा. मतलब आपको लगेगा कि प्रेशर एक ATM में, बट प्रेशर क्या होगा, एक से ज्यादा होगा. तो यहाँ पे ये H आ गया. So this is going to be at PB, no, this PB, right, is nothing but P external plus P air plus rho GH. ठीक है, तो अगर ये PATM है, 1 ATM है, तो यहाँ पे ये H क्या होगा, आपको 1 ATM से कम वाला दिखेगा. मतलब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1 ATM है ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी 1 ATM होगा, तो यहाँ पे 76 ना आगे, हो सकता है 74 सेंटीमीटर ही दिखे आपको, 75 सेंटीमीटर ही दिखे, क्योंकि वो बाकी जो बचा हुआ प्रेशर है वो किससे आ रहा है, एयर से आ रहा है. तो फॉल्टी बैरोमीटर में ये होता है.
फिर नेक्स्ट है इसमें वोल्टमीटर बैरोमीटर के बाद मैनोमीटर। मैनोमीटर में दो हैं, ओपन एंड एंड क्लोज एंड। दोनों समझ लेते हैं, पहले ओपन एंड। तो एक्चुअली में होता क्या है, ये कुछ ऐसा रहता है, ट्राइंग टू ड्रॉ नॉट वेरी गुड इन इट, ठीक है। और इससे यहीं पे है ना, इससे ये मान लो किसी में गैस रखी हुई है, so that is actually measuring the pressure of gas, है ना। मैनोमीटर इज measuring pressure of gas, कि गैस का प्रेशर क्या है, ठीक है। नाउ जब ये गैस है, थोड़ी देर और रुक जाओ, बस क्लास छोड़ रहे हैं, वेट वेट वेट, इसको फिनिश तो करते हैं पूरा। तो इससे यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये, है ना, ये खाली यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बना लेना। ठीक है। और इसमें मरकरी फिल होता है, इसमें क्या होता है, मरकरी फिल होता है। तो देखो अब यहाँ पे अगर ये प्रेशर ये है, तो इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी प्रेशर एट दिस पॉइंट। मैंने अभी बताया था गैस में तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है। अगर ये बिल्कुल क्लोज है यहाँ से, है ना, और यहाँ ओपन है, ये दिस इज गोइंग टू बी ओपन, तो अगर ये क्लोज है तो इसके कारण यहाँ तक प्रेशर जो लगने वाला है दैट इज गोइंग टू बी पी गैस, ठीक है, राइट, दैट इज गोइंग टू बी पी गैस। और मैंने बताया था लिक्विड में अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच तो यहाँ पे भी जो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये भी क्या होगा, पी गैस, ठीक है। अब अब बात आती है कि मान लो ये इसकी हाइट यहाँ तक है, तो वी विल बी सीइंग द डिफरेंस, यहाँ पे ये कितना डिफरेंस है। So we are going to see this is what is the difference over here, that is going to be h। और अगर ये ओपन है तो यहाँ पे लग रहा होगा इस पॉइंट पे, लेट्स से दिस इज द पॉइंट C, है ना, इस पॉइंट पे प्रेशर लग रहा होगा PATM, ठीक है। फिर से थोड़ा ट्यूब में दोबारा बना लेता हूँ ऐसे, लेट्स से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये ट्यूब ओपन है, ठीक है, ओवर हियर, और यहाँ पे तक मरकरी भरा हुआ है ये पूरा, और ये जैसे जैसे गैस ज्यादा होगी, है ना, जैसे जैसे ज्यादा प्रेशर ये एक्सर्ट करेगी, तो ये मरकरी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा या नहीं होगा, बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए ये यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्रेशर। जितना ये गैस उसको पुश करेगी उतना ये ऊपर चढ़ता जाएगा। मान लो ये यहाँ पे है ना, मैंने 3 पॉइंट दिए हैं, ये 3 पॉइंट है, लेट्स से A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो यहाँ पे जो ये P गैस है दैट इज गोइंग टू बी सेम एज P ओवर हियर, है ना, PV। तो आई कैन राइट A equals to PB, that is equals to P gas. Now at the C point, what is the pressure? ATM, 1 ATM है लग रहा है, ATM pressure लग रहा है. PC is nothing but 1 ATM. What is going to be, let's say P gas, तो we can write accordingly कि यहाँ पे लग रहा है P gas, है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लग रहा है PATM, फिर ये जो भी ये हाइट है इसके कारण H रो GH प्रेशर आएगा, तो इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, PV equals to रो GH plus PATM. बस आ गया आपका, दैट इज पी गैस। आपको जैसे ये हाइट पता चलेगी, आपको ये एटमॉस्फेयर प्रेशर पता है, तो आपका आंसर आ जाएगा, गैस का प्रेशर निकल आएगा। समझ में आया ये बात। अब है क्लोज एंड, क्लोज एंड होगा तो वहां पे पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पी, बस क्लोज एंड में बस इतना ही डिफरेंस है। दिस इज गोइंग टू बी क्लोज एंड ओवर हियर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैक्यूम होगा, एंड P at that C point,
तो क्या हो जाएगा, पी सी इक्वल टू 0 होगा। अब ये जो भी पॉइंट है ए, ये जो भी पॉइंट है बी, है ना, इस पे क्या आ रहा है, पी गैस। तो इस पॉइंट पे जो आने वाला प्रेशर है पी गैस। तो ये जो कॉलम की जो हाइट है उसके कारण जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस होगा। तो गैस ओवर हियर इज नथिंग बट OGH. This is the H height. So that's how we are measuring. Okay. अब ये बता दो, इसमें जो भी बात नहीं, बस यहीं तक खत्म कर रहे हैं। That is the class is over. जिसको ये बातें नहीं समझ में आई हो वो मुझसे रुक के पूछ ले अभी, कहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। Remaining people can go. अभी मैं कर दूंगा अपलोड, ठीक है। ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड, है ना, जो केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर था, आई हैव अपलोड। मे बी 30 मिनट्स में हो जाएगा, ठीक है, 30 मिनट्स में। किसी को कोई डाउट है, बंद खत्म करें फिर। समझ में आया ये क्या किया हमने यहाँ पे, किसी को बैरोमीटर में प्रॉब्लम? यस निशान। सर कोई डाउट नहीं है, बस सी ऑफ करना था। ओके ठीक है बेटा, थैंक यू सर। बाय। बाय। हैप्पी दिवाली सर। सेम टू यू बेटा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई जस्ट विश कि आप अच्छे से सेफ दिवाली मनाओ, है ना, खूब सारी मस्ती करो एंड मेक इट गुड मेमोरीज, है ना, हमेशा। थैंक यू सर। ओके। हाँ हेलो बेटा, सर। हाँ बेटा, सर मुझे इसमें डाउट नहीं सर, मुझे जनरल जेई एडवांस के बारे में डाउट पूछना था सर। हाँ पूछो। सर जेई एडवांस में एक्चुअली कोई वर्चुअल कैलकुलेटर ऐसे कुछ अलाउड है क्या? यार जो मेरी इंफॉर्मेशन है अभी तो अलाउड नहीं है, शायद हो जाएगा आगे, क्योंकि जो ये और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें धीरे धीरे वो करने लग गए हैं कैलकुलेटर अच्छा। अलाउड। उससे फायदा ये होता है कि जब आपके बहुत इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस हैं, कहीं पे कोई कैलकुलेशन है, तो वहां पे एक बेटर आइडिया लग जाता है कैलकुलेशन। हाँ सर, ये सर, हाँ तो सर। आई थिंक अलाउ होना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी कैलकुलेशन तो सारे बच्चे सही कर लेते हैं, बड़ी हाँ सर। कैलकुलेशन में उनको दिक्कत आती है, तो ठीक है। यस सर। ठीक है। पता ठीक नहीं, है, अभी थैंक यू सर। अभी मुझे मतलब मेरा उतना अच्छा अपडेट नहीं है, जहां तक मुझे किसी बच्चे ने अभी तक बताया नहीं है। आई ऑल्सो हैव टू टेक द रिव्यू कि सच में है या नहीं, लेकिन होना चाहिए या होने वाला है, आगे हो जाएगा। अच्छा, ओके सर। थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली सर। सेम टू यू बेटा, सेम टू यू। थैंक यू सर। ठीक है, दैट्स इट देन, वी आर एंडिंग दिस क्लास। ओके ओके, बाय बेटा।